Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of engineering graphics and CAD. We have finished the profile line problems, and in profile lines, whatever auxiliary inclined plane we have used, जो भी हमने auxiliary inclined plane use किया था x1 y1, it was in vertical fashion. x1 y1 was a vertical line, and we have drawn this particular line parallel to our front view. It means, इसका मतलब यह है कि प्रोफाइल लाइन में जो हमने x1 y1 यूज किया है वो भी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन ही है, लेकिन वो वर्टिकल होने के कारण हम उसे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं. इट मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ योर इनिशियल xy लाइन. ओके, तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हमने प्रोफाइल लाइन में यूज किया और उसके कुछ वैरायटी थे प्रॉब्लम के, वो सब वैरायटी भी हमने सॉल्व किए हैं. पहले वैरायटी में हमने ट्रू लेंथ डिटेक्ट किया, दूसरी वैरायटी में आपको ट्रू लेंथ दिया था, उससे आपने प्रोजेक्शन कंप्लीट किया, तीसरी वैरायटी में आपको थीटा दिया था, चौथी वैरायटी में आपको फाई दिया था, एंड वी हैव फिनिश्ड ऑल इट्स प्रोजेक्शन. एंड यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद द पैरेलल लाइन. Which lines are called as a parallel lines? The two lines are called as a parallel line when if you will increase its length up to infinity, and then also if they are not going to intersect each other, they are not going to cut each other, such lines are known as the parallel lines. और यहाँ पैरेलल लाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने कल आप सबको बताई थी, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेलल लाइन फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू में, ऑक्सिलरी टॉप व्यू में, पैरेलल लाइन आप कहां भी ले जाइए एक दूसरे को वो पैरेलल ही दिखती हैं. दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के आधार से ही हम पैरेलल लाइन के प्रॉब्लम्स ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं. क्या प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइन आप फ्रंट व्यू में रखिए, टॉप व्यू में रखिए, साइड व्यू में रखिए, उसे आप ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन के ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू में रखिए या ऑक्सिलरी टॉप व्यू में रखिए, कहां भी रखिए, लेकिन पैरेलल लाइन एक दूसरे को पैरेलल ही रहती है. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बात इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्यू लाइन और परपेंडिकुलर लाइन को एप्लीकेबल नहीं होती है. ओके, सिर्फ पैरेलल लाइन ही ऐसी लाइन है जो आपको हर एक व्यू में पैरेलल दिखेगी. दिस पर्टिकुलर पॉइंट एवरीबडी मस्ट नोट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइन, एंड यू विल better understand it when you will solve some of the problems. Actually, the problem related with the parallel lines are also, we can say that it is a ready-made kind of the problem or printed format of the problem. Parallel line के जो problem है उसमें आपको बहुत बार ये जो प्रॉब्लम है वो प्रिंट होके आएगा और आपको रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करना है. Okay, so write down the first problem. Line AB and CD, line AB and CD, line AB and CD are parallel to each other. Line AB and CD are parallel to each other. Line AB and CD are parallel to each other. Find out its a true length. Find out its a true length find out its true length and distance between two parallel lines, and distance between two parallel lines, distance between two parallel lines.
Okay, so you will have to start drawing with me only. This is half printed or printed kind of the problem. First of all, draw XY line. In this way. Then at 20 mm, you set one point. At 20 mm, you need to set a point. Then name these points as A dash, A. Okay, and from both the lines take inclination of 30 degree. यहाँ 30 डिग्री का इंक्लिनेशन निकाल दीजिए. और लाइन की लेंथ रखिए 60 mm. ये 30 डिग्री पे निकाल लीजिए. लाइन की लेंथ रखिए 60 mm. This end point is your B dash. Similarly, in top view also, draw here angle of 30 degree. Here also angle must be of 30 degree. Name this particular point as a B dash, not B dash, only B. Sir, length किती म्हणला? 60. Okay. This is going to be 20. This is going to be 20. This is going to be 60. This is also going to be 60. And this inclination is going to be 30 degree. Here also it must be of 30 degree. In this way, line A dash B dash and line A and B you must draw. Understood? Have you drawn it? Make this A dash B dash and AB dark with the help of your pen. पेन से आपने जो ड्रॉ किया है ऐसे समझिए कि वो जो पार्ट है वो प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको दिया गया है.
Okay, have you drawn this much? Yes, sir. A dash, B dash and AB, have you drawn it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. Okay, now from this प्रोजेक्टर ऑफ ए, इस ए के प्रोजेक्टर से बीस mm पर, ए के प्रोजेक्टर से, देखिए मैं क्या बोलता हूं, ए के प्रोजेक्टर से यहां 20 mm पर और XY लाइन से 10 mm पर यहां एक पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। इस ए के प्रोजेक्टर से 20 mm पर और XY लाइन से 10 mm पर। एक पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दिया आपने? यहां एक पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। सिमिलरली इस प्रोजेक्टर से 20 mm पर और XY लाइन से 10 mm पर डायमेंशन मत लिखिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं। यहां भी एक पॉइंट सेट कर दीजिए। हैव यू ड्रॉन इट? आपने पॉइंट ड्रॉ कर दिया? Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. या, Yes, sir. you have drawn it. Good. Now I'll remove the dimension because it is not required. This is for just your understanding purpose because you need to draw this in your notebook. तो ये पॉइंट यहां ऐसे आ गया। I'll name this point as, दूसरी लाइन कौन सी है अपनी? CD. So this is C dash and this will be C. और AB की लेंथ हमारी 60 है, तो आपको क्या करना है कि A डैश B डैश लाइन को पैरेलल, A डैश B डैश लाइन को पैरेलल 60 mm की ही एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। इट मस्ट बी पैरेलल टू A डैश B डैश। This end point will be your point D dash.
and draw one line in top view parallel to AB and having 60 mm length. In this way. This will be your point D. तो जो प्रॉब्लम आपको एग्जाम का आएगा वो प्रॉब्लम ऐसा होगा. ओके, अब आप देखिए फ्रंट व्यू में आपको पैरेलल लाइन दिखती है, टॉप व्यू में भी आपको पैरेलल लाइन दिखती है. और जब आपको ऐसे पैरेलल लाइंस की पेयर दिखेगी तो हमें समझ जाना है कि ये प्रॉब्लम पैरेलल लाइन का प्रॉब्लम है. नाउ कैन एनीबडी tell me or read out the problem which I have given to you? Line AB and CD are parallel to each other. Yes. Find out its true length Yes. and distance between two parallel lines. Exactly. Now we will have to find out the true length. अब ये पैरेलल लाइन की पेयर है, हम इसकी ट्रू लेंथ रोटेशन मेथड से नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमें इसकी ट्रू लेंथ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का यूज करना पड़ेगा. हियर द पेयर ऑफ लाइन इज गिवन एंड यू कैनॉट फाइंड आउट द ट्रू लेंथ ऑफ सच लाइन्स विद द हेल्प ऑफ द रोटेशन मेथड. अब आप देखिए, अगर आपने देखा तो आपको यह पता चलेगा कि यहां भी ए डैश के नीचे ए डैश का ए पॉइंट है, बी डैश के नीचे एग्जैक्टली बी पॉइंट है, सी डैश के नीचे सी पॉइंट है और डी डैश के नीचे आपका ये डी पॉइंट है. यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के पॉइंट एक ही प्रोजेक्टर पे आते हैं. ये बात फिर से यहां प्रूव हो गई है. लेकिन आप यहां आपके रोटेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पेयर ऑफ लाइन दी हुई है. अगर आप रोटेशन मेथड यहां यूज भी करना चाहोगे तो इतने लोकस और इतने प्रोजेक्टर हो जाएंगे कि द पर्टिकुलर पर्सन में गेट कंफ्यूज. सो टू कीप आवर ड्राइंग very simple and easy to understand, we will have to use the auxiliary plane method. Now in auxiliary plane method, the first rule is rule number 1. You will have to note it down in your notebook. Rule number 1, start auxiliary inclined plane method. Start auxiliary inclined plane method at such a view where more data is given. Where more data is given. Where more data is given. अब इसका मतलब क्या है कि ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन आपको कहां से स्टार्ट करनी है? जहां जिस व्यू में आपको ज्यादा डेटा दिया हुआ है.
अब आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में ये व्यू है, यहां है हमारा फ्रंट व्यू और यहां है हमारा टॉप व्यू। अगर आपने देखा तो आपको यह समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू में हमें 2 लाइंस दिए हुए हैं और टॉप व्यू में भी हमें 2 लाइंस दिए हुए हैं, यानी कि जो डेटा है वो फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में सेम दिया गया हुआ है। देखिए एक्स वाई लाइन के ऊपर भी 2 लाइन है, एक्स वाई के नीचे भी 2 लाइन है। अगर एक्स वाई लाइन के ऊपर 2 लाइन रहती थी और एक्स वाई लाइन के नीचे सिर्फ 1 लाइन रहती थी या 1 लाइन और 1 पॉइंट रहता था, तो ज्यादा डेटा फ्रंट व्यू में हम कंसीडर करते थे और वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट करते थे। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को हमने स्पेसिफिकली अगर देखा, इफ यू विल लुक टुवर्ड दिस प्रॉब्लम वेरी केयरफुली, you will come to know that in front view as well as in top view 2 lines are provided, means same data is given in front view and in top view. So here we can get the freedom that we can start solving this particular problem above xy line also or below xy line also. आप फ्रंट व्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं या आप टॉप व्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने पर्पसफुली ये जो फिगर है वो एक साइड को ड्रॉ की है क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना चाहता हूं। एंड हाउ टू सॉल्व इट, लुक केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ वन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ओके, इट मस्ट बी पैरेलल टू वन ऑफ इट्स लाइन। So here I have drawn auxiliary inclined plane perfectly parallel to this A dash B dash. Okay, I'll name it x1 y1. This is x1, this is y1. And now I'll draw the projectors through those points in forward direction. Projector must be 90 degree to x1 y1 line. अगर 90 डिग्री नहीं लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इन दिस वे you will have to draw it. This is the projector from C dash. And this is the projector of D dash. See, all projectors are also parallel to each other. Now, this particular view is nothing but our auxiliary top view. ये क्या है हमारा ऑक्सिलरी टॉप व्यू है। अब ऑक्सिलरी टॉप व्यू में हमें डिस्टेंस मार्क करने हैं, तो हमें कौन से व्यू का रेफरेंस लेना पड़ेगा? मैंने बताया था ऑक्सिलरी प्लेन मेथड, जब मैंने बताया था तब कि आपको ये व्यू हाइड करना है, इस व्यू के डिस्टेंसेस नहीं लेने हैं। आपको डिस्टेंस कहां के लेने हैं? आपको डिस्टेंस XY लाइन के नीचे वाले सब डिस्टेंस लेने हैं। ओके, नाउ यू विल हैव टू टेक दिस डिस्टेंस इन कंपास। XY लाइन के नीचे का A पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लीजिए। ये डिस्टेंस ले लीजिए और ये यहां मार्क कर दीजिए।
Okay, this will be your point A1. यहां आपका पॉइंट आ गया A1. Now you will have to take this distance in a compass, and you will have to mark, you will have to measure in downward direction XY line to B point distance, and you will have to mark it on the projector of B. Okay, then join this line AB. ये लाइन जो है वो ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी हो गई AB की ट्रू लेंथ. You will have to name here B1. Now take the distance in the top view from XY line to C and mark the C point on the projector of C. Immediately name it C1 and take the distance of D and mark the point at projector of D is here, so you will have to mark it in this way. Join these two lines. डिस्टेंस कहां के लेने हैं पता चल गया आपको. ए के प्रोजेक्टर पे ए का डिस्टेंस, बी के प्रोजेक्टर पे बी का डिस्टेंस, सी के प्रोजेक्टर पे सी का डिस्टेंस और डी के प्रोजेक्टर में डी का डिस्टेंस. दिस इज योर D1. D1. अब आप देखेंगे कि अगर आपने करेक्ट ड्रॉ किया है तो ऑक्सिलरी टॉप व्यू में भी आपको वो जो दो लाइंस हैं AB एंड CD एक दूसरे को पैरेलल दिखेंगी. देखिए है क्या, ऑक्सिलरी टॉप व्यू में भी आपका जो ट्रू लेंथ है वो ट्रू लेंथ पैरेलल आ गया है क्या एक दूसरे को. चेक इट आउट. पैरेलल आता है क्या? हेलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात जो पहले मैंने बताई थी, द फर्स्ट थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट पैरेलल लाइंस आर लुक्स पैरेलल इन फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड ऑक्सिलरी व्यूज आल्सो. ये बात सच हो गई कि फ्रंट व्यू में भी आपको पैरेलल लाइन है, टॉप व्यू में भी आपके यहां पैरेलल लाइन है और ऑक्सिलरी व्यू में भी आपको पैरेलल लाइन मिल जाती है. ये बात ट्रू हो गई. ओके, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, you will have to draw up to this particular point. Those who have not completed it, and we will move towards this particular problem in 1 minute. Hello, so what is your true length of A1 B1? 50 mm. 50 mm.
50 mm. हॅलो 68 sir. हा तेच म्हणलं कारण हाँ सर 66 yes yes it must be more than 60 mm because what is our rule? True length is always greater than front view length and top view length. Am I correct? So it must be more than 60. And what is the true length of CD? Same. Same, absolutely correct. Now the second work is finding out the distance between two lines. अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अगर आपके सामने ऐसे लाइन रख दी तो आपको इन दो लाइन में से इसका जो डिस्टेंस है वो पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि सामने से आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। ओके, मैं जो लाइन्स दिखा रहा हूं वो देखिए कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पैरेलल लाइन्स हैं, लेकिन एक्चुअल में आप जब टॉप से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़े से इंक्लाइंड वे पे है। तो इसका जो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स है वो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ये रियल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट रियल। सो व्हाट यू विल हैव टू डू टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स? अगर दो लाइन में से आपको डिस्टेंस उसका चाहिए तो आपको उसका पॉइंट व्यू लेना पड़ेगा। Always keep in mind and write down the note. Write down the note. Note. If the distance between two lines, if the distance between two lines if the distance between two lines have to be known if distance between two lines have to be known, then distance between two lines have to be known, then its point view should be drawn. 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 And minimum distance between these points will be the real distance between the lines or pair of lines, between pair of lines. Now everybody keep your pencil pen aside and look carefully towards this point of view. अब ये मेरे साथ नहीं निकलना है आपको, you just need to concentrate. Okay, what you'll have to do now, these two true lengths are with you, A1B1 and C1D1. What you will have to do, you will have to extend these lines straight away, either
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर नीचे जगह है तो नीचे ले जाइए, या अगर ऊपर जगह है तो ऊपर ले जाइए। ओके, नाउ I have extended the A1 B1. Similarly, you will have to extend the C1 D1. Take care that these extended lines must be parallel to each other. ये जो extended lines हैं वो भी एक दूसरे को parallel होने चाहिए। अगर इसमें भी parallelism में आपने गलती कर दी तो आपके जो बाकी के आगे के आंसर्स हैं वो रॉन्ग आ सकते हैं। ओके, तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल हमें ड्रॉ करने हैं और उसे यानी कि सिर्फ एक्सटेंड करने हैं, बिकॉज ऑलरेडी इन द ट्रू लेंथ बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ यू नीड टू introduce another auxiliary plane to get the point view. अब हम क्या करेंगे? We are going to introduce another auxiliary inclined plane, but it must be perpendicular to those lines. ये perpendicular line ड्रॉ करने में भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। ओके, तो गलती नहीं करनी है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, बोथ द एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री। और मैं इसे नाम देता हूं x2 और ये होगा मेरा y2। Okay, this is auxiliary perpendicular plane. अब मुझे क्या करना है? ये है मेरा लोकस ऑफ A एंड B। ये मेरा लोकस ऑफ ए एंड बी है, और ये जो है नीचे वाला ये है मेरा लोकस ऑफ सी एंड डी। और वी सिंपली राइट लोकस ऑफ सी डी एंड हियर वी विल राइट लोकस ऑफ ए बी। Now, x2 से हमें इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मार्क करने हैं, तो x2 को चिपक के जो व्यू है वो व्यू हम कर देंगे हाइड। ये जो डिस्टेंसेस हैं ये कर देंगे हाइड, और हम क्या करेंगे? ये x1 y1 से यहां के जो डिस्टेंसेस हैं वो रेफर करेंगे। अब आप देखिए a डैश और b डैश x1 y1 से सेम डिस्टेंस पे है। इज इट करेक्ट? ये देखिए यहां a का डिस्टेंस और b का डिस्टेंस दोनों सेम डिस्टेंस हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? Have you seen it or not in the diagram? Yes, sir. Yeah. तो मैं क्या करूंगा? ये जो डिस्टेंसेस हैं ये डिस्टेंस लेके मैं यहां मार्क करूंगा। आई विल मार्क दोज डिस्टेंसेस ओवर हियर। जस्ट अ मिनट। तो मेरा ए बी जो है वो आ गया यहां, एंड देन फ्रॉम एक्स वाई लाइन
this distance of C dash and D dash is also at a same distance. तो ये जो लाइन है एक्सटेंडेड हुई लोकस ऑफ सी डी, उस पे मैं क्या करूंगा, ये C एंड D का जो डिस्टेंस है वो यहां मार्क करूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो मेरा पॉइंट आ गया वो आ गया A2 B2 का पॉइंट, और यहां जो मुझे पॉइंट मिल गया वो मिल गया मुझे C2 और D2 का पॉइंट, C2 एंड D2, और यहां मेरा मिल गया मुझे पॉइंट A2 and B2. Now what I'll do, I'll draw a faint line in between A2, B2 and C2, D2. Okay. So this is nothing but the distance between point view of your line A2, B2 and line C2, D2. AB लाइन का जो पॉइंट व्यू है और CD लाइन का जो पॉइंट व्यू है, इन दोनों पॉइंट व्यू के डिस्टेंस इन बिटवीन, जो दोनों पॉइंट के डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मुझे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन देता है। What it gives? It gives this particular distance. It will gives me minimum distance between AB and CD. और यहां मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। I will measure the distance between this A2, B2 and C2, D2, and that will be minimum distance between AB and CD. Okay. So this is the way. In parallel lines, first of all, you will have to check, number one, where more data is given. Number two, where more data is given, from that particular end, you can start solving the problem. First of all, calculate its true length by this auxiliary inclined plane. Then extend that true length. Draw one another auxiliary inclined plane perpendicular to it. उस x2 y2 को जो नजदीकी व्यू है उसे आप हाइड कर दीजिए, उसके नेक्स्ट पहले वाले व्यू में जाइए, वहां से डिस्टेंस पिकअप कीजिए, डिस्टेंस वहां डाल दीजिए, वो जो दो पॉइंट है वो जोड़ दीजिए, यू विल गेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन AB and CD. Very, very easy process. Now, one thing which I want to add in this particular example is you can solve this problem from top view also. Top view यानी क्या है कि आप ये जो प्रॉब्लम है वो अगर आपने ऊपर निकाल दिया तो आप क्या कर सकते हैं, यहां आप आपका x1 y1 निकाल सकते हैं, यहां लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं इन दिस वे। यहां से ऊपर के जो डिस्टेंसेस हैं आप यहां मार्क कर सकते हैं, यानी कि आप नीचे ट्रू लेंथ ला सकते हैं। तो आप ये प्रॉब्लम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज
सेम डेटा इज गिवन। ऊपर भी 2 लाइंस दिए हुए हैं XY लाइन के और नीचे भी 2 लाइंस दिए हुए हैं, तो आप प्रॉब्लम ये कहां भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट फ्रीडम इज गिवन टू यू। ओके, सो माय रिक्वेस्ट इज टू यू, कंप्लीट this particular point view, find out the minimum distance between these 2 lines and write down somewhere near your problem. Okay, complete this problem.